Kim and Ray were very close friends. Kim और रे बहुत करीबी दोस्त थे. They were neighbors, classmates at school, and later, co-workers at work. वे पड़ोसी थे, स्कूल में सहपाठी थे, और बाद में काम पर सहकर्मी थे. One day, he decided to go on a sea voyage to explore the strange land. एक दिन, उन्होंने अजीब भूमि का पता लगाने के लिए समुद्री यात्रा पर जाने का फैसला किया. He began his journey in a cruise ship and traveled far and wide. उन्होंने एक क्रूज जहाज में अपनी यात्रा शुरू की और दूर-दूर तक यात्रा की. However, during their journey, the weather turned very disastrous. हालांकि उनकी यात्रा के दौरान मौसम बहुत विनाशकारी हो गया. The ship broke down in the middle of the sea. जहाज समुद्र के बीच में टूट गया था. Most of the passengers perished, but Kim and Ray could swim to a nearby island. अधिकांश यात्री मारे गए, लेकिन किम और रे तैरकर पास के एक द्वीप पर जा सकते थे. The island was deserted. There was not even a tree there. टापू सुनसान था, वहां एक पेड़ भी नहीं था. Kim and Ray realized that they cannot survive on the island without divine intervention. किम और रे ने महसूस किया कि वे दैवीय हस्तक्षेप के बिना द्वीप पर जीवित नहीं रह सकते. He decided to pray to God. उन्होंने भगवान से प्रार्थना करने का फैसला किया. They wanted to see whose prayer would be more powerful. वे देखना चाहते थे कि किसकी प्रार्थना अधिक शक्तिशाली होगी. Kim went to the eastern tip of the island, knelt down and started praying there. किम द्वीप के पूर्वी सिरे पर चले गए, घुटने टेक दिए और वहां प्रार्थना करने लगे. Ray went to the western tip of the island and prayed there. रे द्वीप के पश्चिमी सिरे पर गए और वहां प्रार्थना की. Kim prayed to God to give her food to survive. किम ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे जीवित रहने के लिए भोजन दे. Surprisingly, he found a heap of food, fruits and vegetables by the sea. हैरानी की बात है कि उसे समुद्र के किनारे भोजन, फल और सब्जियों का ढेर मिला. After 2 days, he requested for a beautiful girl as his wife, as he was feeling very lonely on the island. 2 दिनों के बाद, उसने surprisingly, he found a heap of food, fruits and vegetables by the sea. हैरानी की बात है कि उसे समुद्र के किनारे भोजन, फल और सब्जियों का ढेर मिला. After 2 days, he requested for a beautiful girl as his wife, as he was feeling very lonely on the island. 2 दिनों के बाद, उसने अपनी पत्नी के रूप में एक सुंदर लड़की के लिए अनुरोध किया, क्योंकि वह द्वीप पर बहुत अकेला महसूस कर रहा था. Within hours, there was a shipwreck near the island and a lone survivor. कुछ ही घंटों में, द्वीप के पास एक जहाज की तबाही हुई और एक अकेला जीवित बचा. A beautiful girl. एक सुंदर लड़की. Kim married the girl. किम ने लड़की से शादी की. Everything that Kim prayed for was granted to her. किम ने जो कुछ भी प्रार्थना की वह सब उसे प्रदान किया गया. About a month after the shipwreck, Kim decided to return to her hometown. जहाज की तबाही के लगभग 1 महीने बाद, किम ने अपने गृहनगर लौटने का फैसला किया. He prayed to God to send a ship to take him home. उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे घर ले जाने के लिए एक जहाज भेजे. Sure, a ship had arrived to take Kim and his wife home. जरूर, किम और उनकी पत्नी को घर ले जाने के लिए एक जहाज आया था. As the couple was about to enter the ship, Kim heard someone talking to her. जैसे ही युगल जहाज में प्रवेश करने वाला था, किम ने किसी को उससे बात करते हुए सुना. It was just a sound.
यह सिर्फ एक आवाज थी। Are you leaving your life partner here and going alone? क्या आप अपने जीवन साथी को यहाँ छोड़कर अकेले जा रहे हैं? Kim was puzzled. May I know who this is and who are you referring to? I have my wife with me. किम हैरान था, क्या मैं जान सकता हूँ कि यह कौन है और आप किसका जिक्र कर रहे हैं? मेरे साथ मेरी पत्नी है। The voice said, I am the one for whom you prayed. आवाज ने कहा, मैं वही हूँ जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। To whom you requested to save your life, and to whom you requested food and shelter and, of course, a wife. आपने किससे अपनी जान बचाने का अनुरोध किया और किससे भोजन और आश्रय का अनुरोध किया और निश्चित रूप से एक पत्नी। Kim knelt in astonishment and said, Thank God. किम ने हैरानी से घुटने टेके और कहा, भगवान का शुक्र है। Then Kim remembered about Ray, whom he had forgotten all this time. तब किम को रे के बारे में याद आया, जिसे वह इस समय भूल चुके थे। He was haunted by a sense of guilt. वह अपराध बोध से ग्रसित था। God told him, I was not answering your prayer. I was only fulfilling Ray's prayer. भगवान ने उससे कहा, मैं आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा था। मैं केवल रे की प्रार्थना पूरी कर रहा था। He only prayed for one thing. उसने केवल एक ही चीज के लिए प्रार्थना की। He said, Please fulfill all the prayers of Kim. उन्होंने कहा, कृपया किम की सभी दुआएं पूरी करें। That was his only prayer. यही उनकी एकमात्र प्रार्थना थी। Kim had tears in his eyes and ran to the other side of the island. किम की आंखों में आंसू थे और वह द्वीप के दूसरी ओर भाग गया। He realized that he had not even thought about his best friend Ray and was happily enjoying his life. उसने महसूस किया कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रे के बारे में सोचा भी नहीं था और खुशी-खुशी अपने जीवन का आनंद ले रहा था। He didn't find Ray there. उसे वहां रे नहीं मिला। He asked God, Where is Ray? उसने भगवान से पूछा, रे कहाँ है? The Lord replied, I took him with me. A man with a golden heart must be with me. यहोवा ने उत्तर दिया, मैं उसे अपने साथ ले गया। एक सुनहरे मन वाला आदमी मेरे साथ होना चाहिए। But I will fulfill all your prayers as I promised them to do. लेकिन मैं आपकी सभी प्रार्थनाओं को पूरा करूंगा जैसा मैंने उनसे करने का वादा किया था। Kim was completely broke. किम पूरी तरह टूट चुका था। She realized why her friends' prayers were more powerful. उसने महसूस किया कि उसके दोस्त की प्रार्थनाएं अधिक शक्तिशाली क्यों थी। This was because Ray's prayers were completely selfless. ऐसा इसलिए था क्योंकि रे की प्रार्थनाएं पूरी तरह निस्वार्थ थी। Moral, selflessness is the highest form of prayer. नैतिक निःस्वार्थता प्रार्थना का सर्वोच्च रूप है।